कमिंग बैक टू मिस्टर चंद्रशेखर, अभी सिनेरियो पोस्ट इलेक्शंस क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में काफी सारे इश्यूज हैं डिमांड के, क्लाइंट स्पेंडिंग के, और यूएस ही नहीं, ऑलरेडी ब्रेग्जिट के बाद यूरोप की ओर से भी जो मूड है आईटी कंपनीज का वो काफी खराब हुआ है. तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड? डू यू थिंक डिमांड विल स्टार्ट कमिंग बैक, कीपिंग इन माइंड कि टेक्नोलॉजी स्पेंड्स ग्लोबली, दे आर नॉट कमिंग डाउन? Correct. I think again this is also an issue which we have to see at many levels. If you look at the US economy has not been doing too badly if you look at the growth rates. So it is not just a problem of absolute growth, which may have been an issue in Europe or in Japan. But in the US it is not absolute growth which is the challenge. The bigger challenge is in a more equitable growth, because while growth in the economy is taking place, while companies and valuations are going up, there is a large segment of the population which does not see a very bright future because of the job scenario or because of the kind of economic environment that is now prevalent. And that is to some extent what has been driving this vote. That is the passion on which I think the candidates, particularly Mr. Trump, were dwelling upon. So going forward, I think that the big challenge will be on how to address this relatively inequitable growth, whether it is because of technology or because of other economic factors, is something which will have to be seen. But clearly the new administration has its work cut out to address this constituency and the concerns and apprehensions which they have. But Mr. Chandrasekhar, if talking specifically about some segments, I'll come to banking sector, because after all banking sector is expected to suffer from Brexit, and it is quite possible that amount of financial jobs that the city of London generated would not be as many now, with there being the Europe hinterland not available yet. So how do you see the situation with respect to BFSI space? You see, as far as the BFSI space is concerned, again, if you look at the US, there was some softening and slowdown in the BFSI segment in the last quarters. Some analysts believe that that was because of delays in raising of the interest rates in the US, and that in turn was related to the US election. So now, post the election result, if the expected changes come in, then perhaps things could change in a positive direction in terms of bringing back conditions where the financial sector institutions are willing to restore investment in the technology area. The second thing is that if you look at the financial sector, today that is arguably one sector which is heavily dependent on technology and is increasingly so. So irrespective of what happens on the political front, the absorption of technology and the adoption of technology is going to go ahead, aside from the temporary ups and downs because of political and other extraneous factors. Okay, Mr. Chandrasekhar, one last question to you. There is also expectations that NASSCOM will be revising its growth forecast at the back of subdued results in this quarter gone by. When is that likely, and should one prepare for single-digit industry growth? Well, we have said earlier that we will revise our guidance post all the results coming in. Now all the results are coming in. We are completing our analysis, and we expect sometime next week to be able to actually share our revised guidance and projections. We don't have a number at this point. We will make that announcement when we need to, but clearly a change is required to our earlier guidance, and the change will be downward, but the exact quantum is something that we are actually still in the process of working out. Well, thanks Mr. Chandrasekhar for joining us and for talking to us. तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही NASSCOM प्रेसिडेंट ने. उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक एक लाइकली मीटिंग है, जिसके बाद जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है आईटी इंडस्ट्री के, उसको रिवाइज किया जाएगा. डेफिनेटली डाउनवर्ड्स होगा. एग्जैक्ट फिगर पर अभी उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन यूएस इलेक्शंस का उन्होंने कहा कि एक इमीडिएट इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जरूर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा असर आईटी पर होगा इस चुनाव के नतीजों का. ऐसी शायद स्थिति नहीं जनरेट होगी. लेकिन अब तक की अपडेट आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 26 इलेक्टोरल वोट्स अब चाहिए
अमेरिका का नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और देखिए, जो क्लैश था दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में, वो शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा स्थिति में लीड करते हुए नजर आ रहे थे। बीच बीच में कहीं कहीं एज मिला था हिलरी को, लेकिन अब जो फाइनली जो टूवर्ड्स जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है ये एग्जिट पोल, आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब करीब 238 सीट्स पर लीड कर रहे हैं, हिलरी हैं 209 सीट्स पर। महज 26 इलेक्टोरल वोट्स अब चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और देखिए मार्केट्स पर इसका असर, भारतीय बाजार तो ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं, लेकिन S&P फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रोक दी गई है 5% की गिरावट के बाद। अब तक का पूरा अपडेट ले लेते हैं अंचल से। अंचल बताइए। शुक्रिया दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं एज अब ट्रंप की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अभी अभी आया है कि जो आयोवा की सीट, जो आयोवा स्टेट है, वहां पे क्लियर मेजॉरिटी ले ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्रिटिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार ट्रंप ने क्या किया है, जो स्विंग स्टेट्स थी वहां पे बढ़त पाई। फ्लोरिडा सबसे क्रिटिकल स्टेट मानी जा रही थी सभी स्विंग स्टेट्स में, उसका अगर आप आंकड़ा देखिए 29 इलेक्टोरल सीट्स थी, वहां पे क्लियर मेजॉरिटी ली। वो एक डेंटिंग इंपैक्ट रहा डेमोक्रेट कैंपेन के ऊपर। दूसरी ओर पेंसिल्वेनिया में जहां पे अभी तक जो डेमोक्रेट्स से लीड बनाए हुए थे, धीरे धीरे ट्रंप ने वो गैप कम कर दिया और अब स्लाइटली ऊपर हो गया पेंसिल्वेनिया में। तो ये एक और टेंटिंग फैक्ट होगा कहीं ना कहीं पूरे डेमोक्रेट कैंपेन पे। अगर आप पूरे मैप की तरफ देखें, अब धीरे धीरे जो नीला पोर्शन है, जो डेमोक्रेट टेरिटरी है, वो श्रिंक होती हुई जा रही है और जो रेड पोर्शन ट्रंप टेरिटरी है वो बढ़ती हुई जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे हम टुवर्ड्स एंड जा रहे हैं पोल रिजल्ट्स के, एक पिक्चर, एक ट्रेंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि शायद इस बारी का जो पोल है विल गो इन फेवर टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा हो सकता है। अभी तक वो लीड बनाए हुए हैं, 250 सीट्स उन्होंने ऑलरेडी इलेक्टोरल सीट्स एक्वायर कर ली हैं और महज 20 सीट्स दूर हैं। तो वो क्रिटिकल रहेगा कि क्या जो क्लिंटन कैंपेन है वो वापस से रिकवर कर पाएगा, क्या वो नवाडा वापस ले पाएंगे, क्या वो एरिजोना में जंग जीत पाएंगे। ये दो अब क्रिटिकल स्टेट्स रहेंगी। और क्या पेंसिल्वेनिया में अपनी बढ़त को कायम रख पाएंगी हिलरी, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। शुक्रिया अंचल आपका। तो इनफैक्ट जिस तरह से अंचल ने बताया भी कि 238 सीट्स पर अभी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, 20 सीट्स उनको और चाहिए यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और रिएक्शन तमाम इक्विटीज पर हम देख रहे हैं। जो प्रेशर है एशियन मार्केट्स में वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ है। निक्केई 5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है और खरीदारी दिख रही है गोल्ड सिल्वर में एज अ सेफ हेवन। ऑलरेडी हमने पहले भी इंटरेस्ट काफी देखा था इन इलेक्शन से पहले और वो वापस रुझान बिल्डअप हो रहा है। तो एक वॉलेटिलिटी, एक हाई स्विंग्स जो है ऑलरेडी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। और अभी भी अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो 8200 के नीचे निफ्टी अब आ चुका है फिर से 8195 के लेवल्स पर। जो स्मार्ट रिकवरी ओपनिंग के बाद दिखाई थी वो रिकवरी अब दूर होते हुए और अब भी 4% नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस अभी देखी जा रही है। सभी सेक्टोरल इंडाइसेस प्रेशर में हैं। 5, 7, 8, 9% तक का डिप हम ज्यादातर सेक्टर्स में देख रहे हैं आज के सत्र में। सबसे ज्यादा हैमरिंग आईटी, ऑटो, इन स्पेस में हो रही है। और अब मेरे सहयोगी मिहिर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ इस बीच श्री आदि गुजरे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज इट सीम्स टू बी स्विंगिंग ट्रम्प्स वे। शायद इसके लिए ग्लोबली आपने ये डीमोनेटाइजेशन की बात करनी थी। नहीं, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट, बट आई थॉट आई विल टेक योर रिएक्शन एनीवेज। इसकी बात करने को मैं तैयार नहीं हूँ। ऑल राइट, ओके। सो एनीवेज, तो कमिंग टू डीमोनेटाइजेशन, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? सरकार का ये जो मूव है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा मूव है। इससे ब्लैक मनी काफी कम हो जाएगा देश में और करप्शन भी कम होगा। इसके साथ जो जीएसटी अभी आ रहा है अप्रैल 1 से, उसमें इवेजन और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे भी ब्लैक मनी जनरेशन बहुत कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये टाइमिंग बहुत अच्छी है और इससे देश को काफी फायदा रहेगा। 2-3 हफ्ते तक थोड़ा कैश अवेलेबिलिटी शॉपिंग वगैरह के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर ऑफटेक थोड़ा कम हो जाएगा। लोग अपने घर में जो सामान होता है उसको ड्रॉ डाउन करेंगे और उसके बाद वापस रीस्टॉक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये टेम्पररी इफेक्ट रहेगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देश पे बहुत अच्छा रहेगा। राइट लेकिन सर मेरा एक इसमें फॉलोअप सवाल ये है कि कल जो अनाउंसमेंट आई है उसमें अगर आप जो प्रेस रिलीज फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी आए उसे देखें तो उसमें दे हैव क्लियरली एक्सेप्टेड दैट दीज 500 and 1000 रुपीज डिनोमिनेशन करेंसी वाज बीइंग यूज्ड हेवीली फॉर शैडो इकोनॉमी, करप्शन, टेरर फंडिंग एक्सेट्रा। तो उसके बाद इतनी जल्दबाजी में व्हाई व्हाट वाज द अर्जेंसी कि नई 500 रुपीज की और 2000 रुपए की नोट इंट्रोड्यूस की जाए सिस्टम में, दैट टू 2000 रुपीज की भी एट दिस पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक? Yes, absolutely. Because without 500 और 1000 रुपी नोट के बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती है। 100 रुपी मैक्सिमम नोट होए खाली $1.5 तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। नई नोट्स की सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई गई है। नई नोट्स पहले की नोट्स से बहुत एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाए गए हैं और इससे ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो था कि नेबरिंग कंट्री में अपनी नोट्स प्रिंट करते थे टेररिज्म फंडिंग के लिए। लॉट ऑफ इलीगल नोट्स वर रनिंग अराउंड, सो दैट आल्सो हैड टू बी स्टॉप्ड। तो ये नई नोट्स जो मैंने सुना है सिक्योरिटी वाइज बहुत बेटर रहेगी। तो ये मिसयूज जो हो रहा था पुरानी नोट्स की वो नई नोट्स में बहुत मुश्किल होगा। जी मिस्टर गोदरेज, लेकिन एक और सवाल, अब ऐसा माना जा रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर एफएमसीजी पर इस डेवलपमेंट का नियर टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और कई सारी ऐसी एक्सपर्ट वॉइसेस है कि डिमांड में इसे एक्सपर्ट मिलेगा। इस पर क्या कहना है आपका? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका पेमेंट जनरली क्रेडिट कार्ड वगैरह से होता है, चेक से होता है। कंज्यूमर स्टेपल्स पे इफेक्ट होगा, वो ज्यादातर कैश में खरीदे जाते हैं दुकानों में। तो क्या होगा कि जो स्टॉक्स है मार्केट में घरों में उसका थोड़ा ड्रॉ डाउन होगा क्योंकि कैश अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी 3-4 हफ्ते तक, उसके बाद रीस्टॉक हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो ये थे आदि गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन, और उन्होंने भी कहा कि सरकार ने सही कदम उठाया है, लेकिन कदम अगर कहीं पर गलत पड़ रहे हैं इस समय तो वो मार्केट्स में पड़ रहे हैं। एक बार फिर से जो सबसे बड़ी खबर इस समय की उसको देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए बस 26 सीटों का फासला बचा है। 270 का टैली उन्हें चाहिए जीतने के लिए चुनाव, और फिलहाल वहां से 26 सीटों का फासला उनके लिए बना हुआ है। और एक के बाद एक जो क्रिटिकल स्टेट्स जहां पर नतीजे आ रहे हैं, जहां पे हिलरी वाज एक्सपेक्टेड टू डू बेटर, वहां पर स्विंग हो रहा है ट्रंप की तरफ। और ये जो दबाव है ये ग्लोबल मार्केट्स पर पूरी तरह से वे करते हुए, इनफैक्ट अमेरिका में जो फ्यूचर्स हैं उसमें ट्रेडिंग रुकी हुई है पिछले कुछ समय से। 5% का लोअर सर्किट यहां पर हिट हुआ है, और इंडियन टाइम के अनुसार आज रात को 8 बजे तक ट्रेडिंग यहां पर रोकी गई है। लेकिन दीपाली, जो बड़ा सवाल यह है कि 8 बजे अगर ये रीओपन होंगे ट्रेड के लिए तो क्या रिएक्शन होगा? तो फिर से एक बार लोअर सर्किट लग सकता है अगर ट्रंप तब तक क्लियर लीड ले लेते हैं। बिल्कुल, और संभावना इसी की नजर आ रही है कि ट्रंप क्लियर लीड ही लेंगे, क्योंकि 238 सीट्स पर वो ऑलरेडी अभी लीड लेकर आगे चल रहे हैं। महज 26 सीट से वो दूर हैं यूएस प्रेसिडेंट बनने से। तो एक इंटरेस्टिंग फेज पर पहुंच चुके हैं अभी जो पोल्स आ रहे हैं, लेकिन मार्केट्स पर डेफिनेटली प्रेशर हम देख पा रहे हैं। निफ्टी अभी भी 4% की वीकनेस लेकर 8205 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अब एक और मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मिस्टर अनिल सिंघवी हैं हमारे साथ आइकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। मिस्टर सिंघवी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। पहला रिएक्शन आपका, जो यूएस इलेक्शंस हैं उसमें अब ट्रंप लीड कर रहे हैं अच्छी खासी बढ़त लेकर, और इम्पैक्ट हम मार्केट्स पर भी देख रहे हैं। मैं तो काफी वक्त से बोल रहा था कि ट्रंप विल बी विनर, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। और ये चूंकि अमेरिका के लिए सरप्राइज है तो मैं सरप्राइज हूँ कि इंडिया के लिए इतना बड़ा नेगेटिव सरप्राइज क्यों है। आई थिंक अमेरिका के अपने इंडिया के लिए ट्रंप विल बी अ मच बेटर प्रेसिडेंट देन क्लिंटन। हमने प्रेसिडेंट क्लिंटन का देखा था, जब बिल क्लिंटन खुद थे तो इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो हिलरी क्लिंटन विल बी ऑफ द सेम लॉट। तो मेरे हिसाब से तो ट्रंप का आना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो एक नर्वसनेस जो ग्लोबल मार्केट में है, इंडिया शुड बी अकॉर्डिंग टू मी अ सेफ हार्बर एंड सेफ एंकर। तो ये बहुत ही, मुझे जो आज घबराहट जो लग रही है बाजार के अंदर वो बिल्कुल बेबुनियाद है। थोड़ी बहुत घबराहट जो ये 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद लेके जो थोड़ी बहुत घबराहट चल रही है,
वो थोड़ा एक डिस्ट्रप्टिव काम है, वो मेरे ख्याल से 8-10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा। वो एक बड़ा झटका लगा था, बिकॉज बहुत ही सरप्राइज मूव हुआ था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पर वो एक सेटल हो जाएगा। थोड़ा इसमें आम आदमी को कठिनाई जरूर होगी अगले 8-10 दिन के लिए, वो कठिनाई को सहन करना पड़ेगा, पर ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज ये बहुत बड़ी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बाजार के हिसाब से। लेकिन अनिल, आपने जो बात कही कि भारत के लिए पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर द अमेरिकन पीपल एंड अमेरिकन मार्केट्स दे वर लिविंग इन डिनायल, जो कि क्लियरली आज रिफ्लेक्ट कर रहा है द वे दे आर ट्रेडिंग। No, that's why I told you, American markets will crash because they were all hoping, enough bets were there on Hillary. You must look at the market was hugely long on Hillary's win. So obviously when you have such a surprise, it was like a Brexit. People had voted on this that Brexit nahi hoga. So UK markets were so long on this that there won't be a Brexit, but Brexit हुआ, UK market गिरे, पर उसके बाद से वापस रिकवर हो गए। तो आज के दिन पे, और जो ट्रम्प ने एक बात कर रखी है कि भाई थोड़ा इनवर्ड लुकिंग होगा, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी होगी, वो तो आई थिंक सब देशों में हो रहा है। कौन सी कंट्री में ये काम नहीं हो रहा है कि वो अपना इनवर्ड लुकिंग नहीं है और वो अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं देख रहे हैं, या ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी जॉब दूसरा कोई क्यों ले जाए। आज अगर हमारी सारी जॉब्स चाइनीज आके इंडिया में काम करते, हम भी इनवर्ड लुकिंग हो जाते। तो इनवर्ड लुकिंग मेरे हिसाब से जो होल ग्लोबलाइजेशन का जो काम मुद्दा था, वो थोड़ा सा मुद्दा चेंज हुआ है, और मेरे ख्याल से तो ठीक है। उसमें बहुत बड़ा मैं नहीं मानता, मेरा राय बहुत दूसरी है कि ग्लोबलाइजेशन ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर द मासेस। बिल्कुल, हाँ, जो वेल्थ है वो वेल्थियर हैव बिकम वेल्थी, करेक्ट। बट आम आदमी आज इंडिया में या यूएस में या सब जगह क्यों, आप ये देखिए क्यों ट्रम्प विन कर रहा है। ये कोई बेवकूफ तो नहीं है। तो जिस आदमी ने जाके वोट दिया, मतलब उसकी कोई परेशानी रही होगी तो वो वोट दे रहा है ट्रम्प को। सारा इंटेलेक्चुअल क्लास वाज सेइंग कि नहीं, ट्रम्प तो कभी जीत ही नहीं सकता, बिकॉज जो भी अमेरिका में एजुकेटेड आदमी वो ट्रम्प को वोट नहीं करेगा। ये बकवास था, ये मीडिया का बवाल खड़ा करके किया हुआ था, बिकॉज नो वन लाइक द ट्रम्प वे ऑफ टॉकिंग। तो क्लिंटन बहुत सेफ बैठ के जो एज यूजुअल लाइफ चलती रहे। बट आई थिंक द वर्ल्ड इज नाउ बिकमिंग डिस्ट्रप्टिव। अगर हमारी टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रप्टिव है तो पॉलिटिक्स में भी डिस्ट्रप्टिव है। वो ब्रेक्सिट ने दिखा दिया, वो स्कॉटलैंड ने पहले दिखाया, आज यूएस दिखा रहा है। I think वी आर बिकमिंग, वी आर इज नॉट लाइफ एज ऑलवेज।